Good morning, everyone. So today we are going to discuss the transactions which I gave you yesterday to solve. Let's see how you have solved it and what kind of problems did you face when solving it based on traditional and modern classification both, right? So we'll be taking care of the aspects which are related to each transaction, and based on that, we will be dividing it based on its nature of that aspect which we have figured out, and according to the nature that we have determined, we'll be applying the rules of debit and credit. So let's check the first transaction that we have here. So everybody, I think everybody is able to see the board clearly. Can I please have the feedback if there is any visibility issues or anything which is not visible or not, if I'm not audible clearly, if there are any such issues, please write it down. Okay. So everything is fine. So let's continue with the solving of the transactions. Okay, so let's start with the first transaction that we have here. Okay, so the first transaction is Raghu started business with cash, rupees 50,000, building rupees 1 lakh. Okay, now Raghu is starting business with cash. So when Raghu is starting business, so Raghu is a businessman for us. और मैंने कल भी बताया था आपको कि जो बिजनेसमैन का अकाउंट होता है उसे कहा जाता है कैपिटल, राइट? तो रघु ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो भी वो चीजें लेकर आ रहा है वो सम टोटल में, चाहे वो कैश लेकर आए या एसेट्स लेकर आए या कुछ भी और चीजें लेकर आए, वो सब कुछ हमारी टोटालिटी में जाता है और उसे कहा जाता है कैपिटल, राइट? सो द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट वी हैव हियर इज कैपिटल, and the second aspect is he is contributing the capital in form of cash and in form of building. So there are two things which he is contributing. कैश लेकर आया वो 50,000 का और बिल्डिंग लेकर आया 1 लाख रुपीस का, राइट? एंड टोटल इनको करेंगे तो हमारे पास आया 1,50,000. Okay, so Raghu has invested 1,50,000 in the business, 50,000 in cash, 1 lakh in building. So what will be the journal entry that we are going to pass? So let's understand the nature of capital is capital only as per modern classification. When the capital increases, it has to be credited. And when the cash and building, so the nature of these accounts are covered under the category of assets. So cash is coming in, building is also coming in the business. So balance of both is increasing. And when the asset increases, it has to be debited, right? So this is as per modern classification. अगर हम traditional से भी करेंगे तो भी एंट्री नहीं बदलेगी, मगर हम समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती. पहला है कैपिटल, पहला एस्पेक्ट कैपिटल ही है. कैपिटल की कैटेगरी होती है आपकी पर्सनल अकाउंट, राइट? अब पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हु इज रघु? इज ही द गिवर और द रिसीवर? रघु इज द गिवर, राइट? सो रघु हैज टू बी Raghu's account, which is representing capital, it has to be credited. And then cash and building is asset. एसेट आता था हमारे रियल की कैटेगरी में, रियल अकाउंट की कैटेगरी में. रियल के लिए रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. So since assets, that is both cash and building, is coming in the business, so it has to be debited, right? So what will be the journal entry for this? The journal entry for this would be cash account debited, कितना? 50,000. Building account debited rupees 1 lakh to capital account. और कैपिटल कितना आया टोटल हमारे पास? 1,50,000. इससे मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी. आपको याद है कुछ दिनों पहले मुझे किसी बच्चे ने पूछा था आपकी क्लास से कि मैम हम जितना अमाउंट डेबिट कर रहे हैं उतना ही क्रेडिट कर रहे हैं, मगर मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमें हमारा अकाउंटिंग जो डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है वो बताता है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, राइट? इक्वल एंड ऑपोजिट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. यहाँ पर आप देखिए the total of debit side, मतलब ये डेबिट हुआ कैश, बिल्डिंग भी डेबिट हुई, the total of debit side is coming out to be 1,50,000, and so we are going to credit it with 1,50,000 only. So debit भी 1,50,000 हुआ टोटालिटी में और क्रेडिट भी 1,50,000 ही हुआ. Okay, so this is the entry that will be passing, that is cash account debited, building account debited to capital account. Okay, okay. There's a request for re-explanation of the first transaction. Let me re-explain it to you.
So the transaction is saying Raghu started business with cash 50,000 and building 1 lakh rupees. तो रघु जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो भी वो चीजें लेकर आ रहा है वो बेसिकली कहलाएंगी उसकी कैपिटल. ओके, so when the business is going to start and the money that is getting invested or the asset which is being brought in by the proprietor is called capital. तो वो 50,000 जो लेकर आया कैश में और जो 1 लाख लेकर आया बिल्डिंग के फॉर्म में, दोनों चीजों को आप टोटल कीजिए, टोटल बनेगा आपका कैपिटल, जो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, राइट, जो आपको देख के समझ में आ रहा होगा. अब कोई भी एक क्लासिफिकेशन आप ले लीजिए, चाहे आप ट्रेडिशनल ले लीजिए या मॉडर्न ले लीजिए, तरीका दोनों का सेम है, रूल्स दोनों में जो आप अप्लाई करते हैं इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. तो आपके ऊपर मैं रखती हूँ आपको किस रूल को अप्लाई करके आपको अपने ट्रांजैक्शंस सॉल्व करने हैं. ओके, सो इफ आई एम डूइंग इट फॉर दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन, द 3 aspects which it has, but the 2 aspects are on the debit side and the 1 aspect is on the credit side. तो बेसिकली हम कहेंगे कि इसके 2 ही एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. ओके, तो क्रेडिट साइड पे जो हमको यहाँ पे दिखेगा वो है कैपिटल. दैट मींस कैपिटल आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वो किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो रहा है? कैपिटल बिजनेस में आ रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश एंड इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग. सो देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आर कमिंग इन. सो कैश आया, बिल्डिंग आई, दोनों चीजें आ रहे हैं आपके पास. दोनों का नेचर क्या है? दोनों का नेचर है आपका 1 लाख एंड दोनों का नेचर है एसेट और अमाउंट है आपका 50,000 एंड रुपीज 1 लाख, राइट. तो अब आपके पास जो ये अमाउंट है उसको जब आप इसके लिए रूल लगाएंगे, वो आपके एसेट कैटेगरी में आ रहा है. सिंस दोनों आ रहे हैं आपके पास, तो आपका अमाउंट क्या होगा? 1,50,000, और वो जाएगा 50,000 फॉर कैश, 1 लाख फॉर योर बिल्डिंग, एंड इट विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड which I have shown, cash account debited, building account debited to capital, because पैसा capital के अंदर आ रहा है. So to capital, so capital is reflecting the proprietor's account, right? और capital को जो आप proprietor's account में दिखा रहे हैं उसको आप लिखेंगे 1,50,000. ओके, एक और चीज यहाँ पर जो एंट्री बन रही है ये मैंने की क्लब की, इसे कहा जाता है कंपाउंड एंट्री. यानी कि जब भी एक से ज्यादा चीज एक से ज्यादा, यानी कि यहाँ पर जैसे 2 चीजें दिख रही है डेबिट साइड पर, और सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी एक से ज्यादा चीजें दिख सकती हैं. तो अगर ऐसा कुछ हम करते हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजें डेबिट साइड पे या एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट साइड पे जब दिखती हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री. ओके, मुझे अभी आगे पूछा है, मैम यू हैव पुट एन एक्स्ट्रा 0 इन द ट्रांजैक्शन. 3 4 5. ओके, आई थिंक 1,50,000 ऐसे ही लिखा जाता है. 4 0 तो लगेंगे 50,000 के आगे. 1,50,000, 1,50,000. Yes, it should be 1,50,000. Yes, and this is 1 lakh and this is 50,000. I don't think so कि कहीं एक एक्स्ट्रा 0 दिख रहा है. This is 1 lakh only. 1 2 3 4 5. अगर ये किसी ने एक एक्स्ट्रा 0 रीड किया है तो अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? ओके, तो अभी मैं आपको ये बता रही थी इसके आगे कि इसको जो मैंने एक से ज्यादा चीज को दिखाया है डेबिट साइड पर, और फिर हमने उसको डेबिट किया टू कैपिटल विच इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, राइट. तो अब इस चीज को हम देख रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है कंपाउंड एंट्री. कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जब एक चीज से ज्यादा आपके एस्पेक्ट्स आते हैं डेबिट साइड पर या फिर क्रेडिट साइड पर, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री, राइट. और जो अब एक ही चीज आती है आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मिलाकर, तो जैसे अगर मैं एंट्री करूं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? उसे कहा जाता है सिंपल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री. और एक से ज्यादा चीज आई तो कंपाउंड जर्नल एंट्री. ओके, उसके अलावा अब एक जो और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, आई होप द बोर्ड इज क्लियरली विजिबल एवरीबडी. ओके, एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो यहाँ पे ये है कि अगर मैं इस एंट्री को ऐसे करने की जगह अलग तरीके से करना चाहती तो वो भी पॉसिबल था. उसमें आप क्या जर्नल एंट्री पास करते? वहां जर्नल एंट्री पास होती कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट वुड हैव बीन 50,000. नेक्स्ट एंट्री जो आप पास करते वो होता है बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख एंड 1 लाख. फर्क क्या पड़ता? कुछ भी नहीं, राइट. क्योंकि टोटल अगर मैं कैपिटल अकाउंट का जब करूंगी तो 50,000 मैंने कैश के थ्रू डाला उसके अंदर, और 1 लाख रुपीज मैंने डाला एज अ बिल्डिंग. तो टोटल कितना हुआ कैपिटल का? 1,50,000. तो इसको मैंने अलग अलग दिखाने की जगह, 2 एंट्रीज में दिखाने की जगह, मैंने एक ही एंट्रीज में इसको क्लब कर दिया है. इसीलिए जो जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे बनाई है वो बनाई है कैश अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू
capital account. Okay, I hope this transaction is clear to everybody. Still anybody has any doubt, please write it down in the chat box. And if this is clear, let me move on to the next transaction. Okay, so the next transaction is saying, pages आपने लिखा था बच्चे, the board is not clear. I hope the board is clear now, clearly visible now. Okay, next transaction देखते हैं. Paid rent 10,000 and salary 20,000. अब rent हो और salary हो, दोनों मेरे लिए क्या है, आप पे कर रहे हैं, तो उस केस में ये मेरे लिए दोनों expenses हुए. अब expense हुआ तो नाम लिख लेते हैं, पहले एक तरफ लिख लेते हैं rent, दूसरी तरफ लिख लेते हैं salary. अच्छी बात यह है कि दोनों पे ही हो रहे हैं. अगर एक पे हो रहा होता, एक रिसीव हो रहा होता, तो उस केस में एक एक्सपेंस हो जाता और दूसरा जो रिसीव हो रहा होता वो होता हमारा इनकम, राइट. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटालिटी में ये हमारे पास है हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तो एक्सपेंस ही कहते हैं. रूल क्या कहता है एक्सपेंस के लिए, डेबिट करेंगे उसे, राइट. और नॉमिनल अकाउंट में जिसको हम कवर करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सो अगेन नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो इसके हिसाब से भी हम डेबिट ही करते हैं, मतलब मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल रूल नहीं बदलता. ठीक है, ओके. दूसरा ये हो गया सैलरी और रेंट आपने पे किया. कैसे पे किया, कैश में पे किया. सो कैश इज एन एसेट विच इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट, राइट. तो अब कैश आप पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. इफ द कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट, राइट. एक्सपेंस को किया डेबिट, कैश को किया क्रेडिट, एंट्री पास करते हैं अब इसे, राइट. तो एक एंट्री बन सकती है मेरी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कितना है रेंट मेरा, रेंट इज 10,000, और दूसरा यहाँ भी कैश भी गया 10,000. दूसरी एंट्री बनेगी इसकी ही, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20 and 20. ओके, ये मैंने बनाई इसकी दो जर्नल एंट्रीज, यानी कि ये दो सिंपल जर्नल एंट्रीज मैंने बनाई है इस एक ट्रांजैक्शन के लिए. कंपाउंड करते तो क्या होता है इसका, इसको मैं रब कर रही हूँ. रूल हमने समझ लिया है कैसे अप्लाई करना है. जर्नल एंट्री देखिए कंपाउंड कैसे करेंगे. कंपाउंड में देखिए यहाँ पर रेंट है, यहाँ पे सैलरी है, यानी कि रेंट भी डेबिट होगा और सैलरी भी डेबिट होगी. रेंट डेबिट होगा आपका 10,000 से, सैलरी डेबिट होगी आपकी 20,000 रुपए से. ठीक है, अब क्रेडिट साइड में देखिए, डेबिट साइड में दो अलग अलग चीजें थी आपकी, तो दोनों आपने लिख ली. क्रेडिट साइड पे देखिए, क्रेडिट साइड में दोनों जगह पे क्या है, कैश. यानी कि क्रेडिट साइड में जो हम लिख रहे हैं वो हमारा एक कॉमन आइटम है विच इज कैश, राइट. कैश एक जगह 10,000 है, दूसरी जगह 20,000 है. अगर हम इसे टोटल करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि दोनों चीजें क्रेडिट साइड पे ही दिख रही हैं, तो इसको हम टोटल करेंगे, राइट. टोटल करेंगे तो मेरा अमाउंट आएगा 30,000 रुपए. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टू कैश 30,000. ये मैंने इन दोनों सिंगल एंट्रीज को क्लब किया, तो ये मेरी कहलाएगी कंपाउंड जर्नल एंट्री. ये एंट्री आप सीधे भी बना सकते थे, जैसे मैंने लास्ट ट्रांजैक्शन में बनाया वैसे ही आप सीधे बना लेते. रेंट पे किया, इट हैज टू बी डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड. सैलरी भी पे कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड. किसमें पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं. सो रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश. टू कैश अमाउंट देखिए 10,000 है, 20,000 है, टोटल कितना पे किया गया है 30,000, तो कैश किया 30,000. सिंपल, राइट. I think there is no doubt to anybody in this transaction. Anybody having any other doubt related to the first or second transaction, please write it down in the chat box. And if it is clear, then let's move on to the third transaction. I hope you're checking your transactions journal entry, क्योंकि ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए. ठीक है, so please ensure whatever that work we are doing in the class or after the class that I'm giving you as an assignment, it should all be present in your notebook, right. And it is going to be used for marking your internal assessment, so do take care of this. Okay,
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन 20,000. इंटरेस्ट भी रिसीव किया, कमीशन भी रिसीव किया, यानी कि दोनों चीजें जब आप रिसीव कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड माय इनकम. आपने रिसीव किया है, लिख लेते हैं क्या रिसीव किया. आपने रिसीव किया इंटरेस्ट, आपने रिसीव किया कमीशन. कितना इंटरेस्ट रिसीव किया? 5,000. कमीशन रिसीव किया 20,000. राइट. दोनों चीजों को कैसे रिसीव किया? कैश में रिसीव किया. टोटल कर लो इनको, कितना आया? 27,000. 27,000 is what you have received, right? ऐसे इंटरेस्ट और कमीशन रिसीव किए हैं तो मेरे लिए इनकम है. इनकम के लिए रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. So this has to be credited. Okay. Okay, there is a doubt for what is the compound journal entry of second transaction. Second transaction की compound entry थी बच्चे. Rent account debited, salary account debited to cash, right? तो आप इसे साथ करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी करके लिख सकते हैं. दोनों केसेस में गलती कहीं नहीं है, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. ओके, अब इसको कर लेते हैं. तो यहाँ पर oh yes, it should be 25,000. Thank you for correcting me, Anjali. It is 25,000. Okay. अब यहाँ पर इंटरेस्ट एंड कमीशन है, वो है इनकम, राइट? इनकम है तो 25,000 रुपए आपको इनकम के फॉर्म में आ रहे हैं. रूल कहता है आपका इनकम के लिए कि इनकम शुड बी क्रेडिटेड, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है तो रूल क्या करता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो इट शुड बी क्रेडिटेड. क्रेडिट कर रहे हैं इनकम को. कैश is coming in, it's a real account, it's an asset and the nature is real account, right? So rule says debit what comes in, credit what goes out. आ रहा है आपके पास ना, so it has to be debited. एंट्री कर लेते हैं इसकी अब, राइट? एंट्री कैसे करेंगे? इंटरेस्ट और कमीशन आया है आपके पास, तो एंट्री पास कीजिए यहाँ पर. कैश अकाउंट डेबिटेड to interest account to commission account. 25,000, 5,000 and 20,000, राइट? ये मैंने पास की कंपाउंड जर्नल एंट्री. कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू कमीशन. सिंपल जर्नल एंट्री पास करते तो क्या लिखते हैं आप? कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट. दो एंट्रीज पास करते, दोनों ही एंट्रीज आपकी सही हैं. जो भी पास कीजिए आंसर सही कहलाएगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एवरीबॉडी क्लियर विद द थर्ड ट्रांजैक्शन? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ ट्रांजैक्शन नाउ. Okay, fourth transaction is purchased motorcycle for cash for personal use. ध्यान देने वाली बात देखिए, पर्सनल यूज. अगर आपने सिर्फ बिजनेस, आपने मोटरसाइकिल परचेज की होती और उसके आगे ये वर्ड पर्सनल यूज नहीं लिखा होता तो ये ऑफिस के लिए होता, सेल्फ अज्यूम्ड है, राइट? कोई भी एसेट जो आप खरीद रहे हैं अगर उसके आगे ऐसा कोई वर्ड लिखा होता है दैट इज पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, तो वो इसको बना देता है ड्रॉइंग्स. समझ में आई बात? अगर ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा होता तो आपके लिए ये आपका ऑफिशियल यूज ही था, राइट? पर पर्सनल यूज होने की वजह से ये हो गई हमारी ड्राइंग्स. अब ये ड्राइंग्स हो गई तो एक जो इसका एस्पेक्ट है वो तो है ड्राइंग्स, राइट? और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कैश. फिर से समझाती हूँ, इसे ध्यान से समझिए, राइट? ओके मैम, डू वी हैव टू राइट द अमाउंट 3 टाइम्स इन अ कंपाउंड जर्नल एंट्री? आपके जितने सारे आइटम्स रहेंगे बच्चे, आप उतनी बार उनके सामने अमाउंट्स लिखेंगे. जैसे अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि कमीशन था आपका 20,000, तो कमीशन अकाउंट आपका 20,000 से आपको क्रेडिट हो रहा था, इंटरेस्ट अकाउंट आपके 5,000 से क्रेडिट हो रहा था, और कैश कितने से डेबिट हो रहा था? टोटल कैश कितना आया? टोटल कैश आया आपका 25,000 रुपए. तो कैश के आगे लिखेंगे 25,000, कमीशन के आगे लिखेंगे 20,000, इंटरेस्ट के आगे लिखेंगे 5,000 रुपए. तो ये आपको जो अकाउंट जितने अमाउंट से इफेक्ट हो रहा होगा आप उसके सामने वो ही अमाउंट लिखेंगे, राइट?
तो आपने जो ये कंपाउंड जनरल एंट्री पास की उसमें आपने 3 जगह अमाउंट क्यों लिखा? क्योंकि 3 अकाउंट भी तो अफेक्ट थे। एक था कैश 25,000 से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट 5,000 से, और कमीशन भी क्रेडिट हुआ कितने से? 20,000 रुपए से। तो जितने जितने अमाउंट से जो चीज इफेक्ट हुई वो आपने उसके सामने लिखना है। सो डज नॉट मैटर कि वो 3 होगा या 5 होगा या 10 होगा, जितनी चीजें होंगी सारे ट्रांजैक्शन में उन सबको आपको रिकॉर्ड करना होगा विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट विथ विच इट इज गेटिंग इफेक्टेड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांजैक्शन व्हिच वी वर डूइंग। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर्ड लिखा है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज लिखे होने की वजह से ये आपका ड्रॉइंग्स में काउंट होगा। अब आपने बिजनेस से निकाला है बेसिकली कैश। फिर से पढ़ते हैं इस ट्रांजैक्शन को। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब आपने बिजनेस से क्या विड्रॉ किया होगा? मोटरसाइकिल तो विड्रॉ नहीं की, आपने विड्रॉ किया कैश। उस कैश को लेकर आप गए मार्केट से, आपने खरीदी मोटरसाइकिल और आपने यूज किया उसको पर्सनल पर्पस के लिए, राइट? तो ये मेरा बना ड्रॉइंग्स का ट्रांजैक्शन। तो ड्रॉइंग से ट्रांजैक्शन बनने की वजह से एक जो ये है एस्पेक्ट वो है ड्रॉइंग्स। दूसरा आपने निकाला बिजनेस से कैश, राइट? तो ड्रॉइंग्स मैंने आपको बताया था डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्रॉइंग्स, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल। तो कैपिटल का रूल क्या होता है? कैपिटल व्हेन इट इंक्रीजेस इट हैज टू बी क्रेडिटेड एंड व्हेन इट डिक्रीजेस इट हैज टू बी डेबिटेड। और ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्रॉइंग्स इज द विड्रॉल मेड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो जो बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है वो चीज कैपिटल के बैलेंस को रिड्यूस करती है। जब कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस होगा उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। इसका नेचर क्या हुआ? कैपिटल, और कैपिटल हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस, तो हम इसे कर रहे हैं डेबिट। कैश आप निकाल रहे हैं बिजनेस से, राइट? कैश इज एन एसेट एंड द कैटेगरी विच इट बिलोंग्स टू इज रियल अकाउंट। अब जब आप उसे निकाल रहे हैं इट हैज टू बी रिड्यूस्ड, और जब वो रिड्यूस होता है एसेट तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करेंगे आप इसे क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट साइड पे क्या आएगा? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट वुड बी कितने का खरीदा? 50,000 का। तो कैश के सामने लिखिए 50,000, ड्रॉइंग्स के सामने भी लिखिए 50,000 रुपए। ओके ma'am, in the next doubt that we have, ma'am, in the fourth transaction, is it necessary that someone is taken out money from the business only? Okay, बहुत अच्छा सवाल पूछा खुशी। कैसे पता चला कि बिजनेस से पैसा निकाला गया है? परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज। आपको ये ट्रांजैक्शन क्यों दी गई है? ये ट्रांजैक्शन आपको इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि अपने अकाउंट, मतलब एज अ बिजनेसमैन मैंने खुद अपने पर्सनल अकाउंट में से पैसा निकाला और अपनी पर्सनल पर्पस के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो वो जर्नल एंट्री हमको नहीं बनानी थी, उसे हम इग्नोर कर देते, राइट? मगर क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि मेरा वो पर्सनल अकाउंट से निकाला वो पैसा था, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको उस पर ध्यान दीजिए। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, इतना। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, राइट? और आपने आगे लिख के दिया है ट्रांजैक्शन में फॉर पर्सनल यूज, मतलब ये अज्यूम किया जाएगा कि ये पैसा बिजनेस में से ही निकाला गया है, मतलब ये अजम्पशन है, राइट? और ये अजम्पशन आपको भी बनानी है हर बार कि बिजनेस में से पैसा निकाला गया है और वो पैसा निकाल करके आपने मोटरसाइकिल खरीदी जिसको आपने यूज किया पर्सनल पर्पस के लिए, और इसीलिए ये ड्रॉइंग्स बना। अगर यहाँ पे ये इतना वर्ड, इतना ये जो था ये नहीं लिखा होता फॉर पर्सनल यूज, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होती? तब इसकी जर्नल एंट्री बनती आपकी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि तब हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि हमने कोई नॉर्मल एसेट खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, राइट? मगर पर्सनल यूज लगने की वजह से ये मेरे बिजनेस के लिए बन गई उसकी ड्रॉइंग्स, बिकॉज ये पर्सनल यूज है, मतलब प्रोपराइटर ने ही निकाला है पैसा, क्योंकि और कोई पैसा निकाल नहीं सकता बिजनेस से। बच्चे ये आपका, आप ये समझिए कि अगर किसी का पर्सनल यूज है तो वो सिर्फ राइट्स जो होते हैं वो प्रोपराइटर ओनर के पास ही होते हैं कि वो पैसा निकाले, राइट, और यूज करे। सो दैट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स है वो आपकी, तो ड्रॉइंग्स को हम करते हैं डेबिट। एंट्री बनी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्या निकाल के लेकर गया बिजनेस से? विड्रॉन कैश, so drawings account debited to cash. This is the right journal entry for this transaction. Any other person having any doubt in this transaction, please write it down. किसी को और कोई भी डाउट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के अंदर तो उसे लिखिए।
समझना बहुत जरूरी है। ऐसी ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम हर ट्रांजैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं और सीख रहे हैं। मैंने पर्पसफुली आपको अलग तरह के ट्रांजैक्शंस लिख कर दी, जिससे कि आप उसे जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा और एक्सपोजर मिलेगा फॉर द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस that we are going to solve in the forthcoming chapters. Okay, anybody having any other doubt? No doubt. Okay, so let's discuss the fifth transaction and the last transaction for this session. इसके बाद हम इस सेशन को टाइम आउट करेंगे because this is anyway going to time out in 9 minutes or so. So what we'll do, we'll finish this meeting here itself after this fifth question, fifth transaction, and there'll be no doubts. So we'll finish and we'll reconnect for the next session. And in that next session, we are going to start with the terms again of chapter number 2, which we were discussing. Okay, everyone. So the moment this question is finished, let's finish the meeting and let's connect again. Okay, so that we can do one or two more items today. Okay, everybody. So this is the fifth transaction that we have in hand now. So let's solve this transaction. I think ये तो बहुत आसान था, ये हमने already जो किया हुआ है उसी के ऊपर दिया था. This was a repetition transaction. So it is purchase plant and machinery. Plant and machinery क्या होती है? Plant and machinery का मतलब होता है, plant means जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसे कहा जाता है प्लांट. जैसे अगर मैं कहूँ कि ओके आप जयपुर में आपने VKI विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया देखा होगा, तो वहां पर आप देखेंगे जाकर तो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं. तो वो जो उनका प्रेमाइसेस होता है ना फैक्ट्री का, उसको हम कहते हैं प्लांट. और मशीनरी क्या होती है आपकी? मशीनरी का मतलब होता है वो मशीन जो वहां पर हम लगाते हैं और उसके ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. तो कई बार हम इसको टोटलिटी में कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी कैन बी टेकन एज फिक्स्ड एसेट which any business is purchasing for the purpose of doing business operations. मतलब आप मशीन में जब तक डील नहीं कर रहे वो आपका स्टॉक नहीं कहलाएगा. अगर आप मशीन खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? For the purpose of doing or for the purpose of manufacturing your products on those machines using the facility of those machines. So that is why they are called fixed assets. और हम इसे खरीदते हैं इस पर्पस के लिए कि हम इसे यूज करेंगे आगे आने वाले सालों तक, राइट? तो यहाँ पे हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं. तो प्लांट एंड मशीनरी एक मेरा एस्पेक्ट हुआ. दिस इज माय एसेट. एन एसेट वी आर परचेजिंग एसेट, इट हैज टू गेट डेबिटेड. रियल अकाउंट के हिसाब से भी देखें तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन है, तो ये मेरा डेबिट ही होगा, राइट? दूसरा एस्पेक्ट है मेरा इसका, वो है मेहरा एंड सन्स, राइट? अब यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा हुआ है, कैश वर्ड यूज नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. इसमें इमीडिएट बेसिस पे प्लांट और मशीनरी जब आपने खरीदी तो आपने कैश नहीं दिया, राइट? तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन का जो नेचर है, जो टाइप है, वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नाउ व्हेन यू आर परचेजिंग दिस मेहरा एंड सन, सो ही इज बेसिकली अ क्रेडिटर फॉर यू. दैट मींस योर बिजनेस, it owes the money to Mehra and Sons, and now Mehra and Son is entitled to receive it from you. तो ये आपके लिए क्या हुई? क्रेडिटर है, मतलब ये आपके लिए हुई आपकी लायबिलिटी, राइट? अब ये लायबिलिटी है और इसको आपको पे करना है. तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है आप उसे क्या करते हैं? इट हैज टू गेट क्रेडिटेड, राइट? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मेहरा एंड सन्स मेरे लिए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हुआ artificial personal account. What does the rule say? The rule says debit the receiver, credit the giver. So what is Mehra and Sons doing? Is he the receiver or the giver? Mehra and Son is the giver. So debit the receiver, credit the giver. Giver है Mehra and Sons. तो इस credit transaction के अंदर मेरे पास plant and machinery आ रही है. किससे आ रही है? Mehra and Sons से. तो journal entry पास कीजिए. Plant and machinery account debited to Mehra and Sons account. Amount is 1 lakh rupees. डेबिट में भी 1 लाख लिखेंगे, क्रेडिट में भी 1 लाख लिखेंगे, राइट? तो ये हो गई आपकी लास्ट transaction. Anybody having any doubt in any of the 5 transactions, please ask. Anybody? Okay, I think nobody has any doubt in these set of transactions and everybody is clear with how do we apply the nature of accounts and the rule of debit and credit for solving the transactions and making their journal entries. जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है इन दिनों में पिछले, उसको बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि यही चीज आपको आगे काम आएगी अपनी
अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, अपने ट्रांजैक्शंस का टी शेप अकाउंट बनाने के लिए, जर्नल एंट्री पास करने के लिए, ये सारी ट्रांजैक्शंस इसी तरीके की आपको आगे भी आने वाली हैं चैप्टर्स के अंदर. तो प्लीज keep on revising, keep on remember all these concepts so that when we'll come on those chapter, it will be easy for you. It's going to be a cakewalk for you. Okay. Now please explain the fifth transaction, the last one. Okay, let me re-explain it to you. आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है. दिस इज एन एसेट. एसेट खरीदा है तो वो आ रहा है. रूल क्या अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. So is the asset coming in or going out? The asset is coming in. डेबिट कर दीजिए इसे, राइट. दूसरा, किससे खरीदी है आपने? आपने खरीदी है मेहरा एंड सन से. तो मेहरा एंड सन जिससे आप खरीद रहे हैं, ही इज द वन हु इज गिविंग इट टू यू, इज प्रोवाइडिंग द एसेट टू यू. सो ही इज द गिवर. रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट के लिए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो ही इज द गिवर, सो इट ही हैज टू बी क्रेडिटेड. अब यहाँ इसके आगे फॉर कैश नहीं लिखा है, मतलब ये ट्रांजैक्शन मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो एक एस्पेक्ट हुआ मेरा प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा एस्पेक्ट हुआ मेरा मेहरा एंड सन्स. क्रेडिट करेंगे इसे, डेबिट करेंगे इसे. जर्नल एंट्री क्या बनेगी? which is getting debited. Plant and machinery account is getting debited, so the journal entry would be plant and machinery account debited to Mehra and Sons rupees 1 lakh. 1 lakh को आप डेबिट कीजिए और 1 लाख को ही आप क्रेडिट कीजिए, राइट. ओके. तेजस, आपने मुझसे पूछा फर्स्ट ट्रांजैक्शन. बच्चे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या नहीं समझ में आया मुझे बताइए, क्या नहीं समझ में आया? मैंने जर्नल एंट्री बताई थी आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन की. रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग. सो व्हेन द बिल्डिंग एंड कैश इज गेटिंग इन्वेस्टेड बाय द रघु इन द बिजनेस, द टोटल ऑफ कैश एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड कैपिटल. और इसका जो आप एंट्री पास करेंगे, कैश इज कमिंग इन, कैश हैज टू बी डेबिटेड. Building is also coming in, so building is also required to be debited. So journal entry क्या बनी? Cash account debited, amount is 50,000. Building account debited, amount is 1 lakh. To capital, because 50,000 और 1 लाख मिलाया तो amount कितना हुआ? 1.5 लाख. तो to capital में कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए. And capital means we are writing the proprietor's account. और proprietor account मतलब जो रघु है उसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस को शुरू करने के लिए? उसने शुरू किया है 1.5 लाख रुपए में. सो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इज 50,000, 1 lakh and 1,50,000. I hope this transaction is clear to you, Tejas. Anybody? Any other doubt? Any other doubt in any of the transactions? Okay, I think this is all clear to everybody. Now, please keep on revising these topics till the time we are not reaching on those chapters, and which we are going to reach very soon, right? So I'm signing it out now. Everybody please connect so that we can start with our next session, and in which we are going to discuss the accounting terminology. Okay, thank you everyone.